बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर रमेश चंद शर्मा जी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो उनकी जो टेक्निक्स हैं टीचिंग की, क्योंकि आप शिक्षा शास्त्र के, रसायन शास्त्र के और साथ ही साथ इस प्रौद्योगिकी शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। आप अपनी ज्ञान रश्मियों से न केवल भारत अपितु विदेशों में भी अपनी ज्ञान गंगा से अपने आप उनको जो है आपने समाहित किया है और उनको जो है आपने पुनीत बनाया है। तो मैं केवल सर के बारे में इतना ही कहूँगा कि he moved from reactions to connections. He moved from reactions to connections. He teaches so well and asks for reactions. He teaches so well and asks for reaction. He provides the knowledge so coolly. He provides the knowledge so coolly that we will learn wholeheartedly, मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। ओके, हमारा टॉपिक अभी आज का है MS वर्ड के बारे में सीखना। उससे पहले आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनको हम ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और उसके वेरियस ब्रांचेस हैं और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मीन्स इनको इवॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगा। अभी मुझे ध्यान नहीं कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ये जाना होगा कि शुरू में जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज सच नहीं था तब द वर्ड स्टार वाज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वो फ्लॉपी के अंदर आता था and then we used to work on that which was in a way the command based systems. Nowadays if you have to do some italics or bold or something in the in your document, you simply click on certain icons and commands and the things are done. But prior to that we used to work on various commands for the software. So that the word star, and then as a spreadsheet software we used to have Lotus 123 and like that. In 1995 when Windows was introduced, and there the software was changed from a simple user interface which was the CUI, command user interface, which you still can access using your computer. If you click on the Windows icon and next to that, if you see here, if you type CMD and then that CMD stands for command prompt, and you see this black window. And here in the older times, if you wanted to see what are the various files in your computer, you just type dir and it will show you the directory listing and something like that. So those softwares, they used to work like that. But then you need to remember all these things, so later on it was shifted from CUI, command user interface, to GUI, graphical user interface. In fact, it is believed that Microsoft was not the first one. It was the Macintosh, the Apple company, who were the first one in introducing, because there is no match for Macintosh systems for graphical processing powers of their products. And that's why if you notice that those people who are into the business of multimedia development, mostly they may have those Mac computers with them to work on because of its graphical capabilities to process the multimedia, process the animations and like those. They are very powerful, but that makes them expensive also. तो जितने में आप एक मैकिंटोश खरीदेंगे उतने में 2 विंडोज बेस्ड आप सिस्टम आराम से ले सकते हो. दैट इज इन ए वे कंपैरिजन. इट इज समथिंग लाइक यू हैव द आईफोन एंड देन यू हैव एन एंड्रॉयड फोन. सो एक तरफ 50,000 का फोन है, एक तरफ 10,000 का फोन आप ले रहे हो. So that makes the difference between them. So what happened previously, they used to offer us different softwares.
If I want to type a document, I will have another document. If I want to do some database, then पहले DBase एस्टेंटेट एक कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट होता था वो, और फिर DBase, DBase 2, DBase 3, DBase 3 plus, and then DBase 4. After that, the things changed like that. Nowadays, they are grouped under a complete package. So these are called as the office productivity tools. Office productivity tools means those tools which are used to enhance the working in an office, where any person, irrespective of their level, they may have to work on various options, like preparing a document, preparing a report, writing a letter, designing a poster, like you saw in the inauguration session, and before my session, a beautiful slide. My full appreciation for your team in that way. Means you are really the top creative staff. Perhaps I can declare that at least within India, I have not seen that kind of creativity which your staff is exhibiting. So you may need to prepare a poster for your event, or means, and then you need to maintain certain databases like the application leaves, the salary of your staff. These are the simple, and there are highly complex jobs also. So for that, if you need to deal with simple typing kind of documents, we use MS Word currently, but it is a proprietary software, remember to that. If we want to maintain some sort of a database, so we have Microsoft Access. If we want to make some sort of presentations to be presented to our audience, to be presented to the either to the our colleagues or the senior management, then we use Microsoft PowerPoint presentation. And then we need to deal with transactions in a systematic way, then Microsoft Excel. Similarly, this is called as a bouquet of office productivity tools. Similarly, those people who cannot afford the Microsoft, because it is a proprietary software, there are alternative open source softwares arrangement to that. So one of them is Open Office. I can, since my screen is shared, I can maybe click on that. So it is Open Office, and you can see here it is available for your Windows and Macintosh system. So let us say if we believe that most of you are working on Windows based systems, so this is Open Office, which is openoffice.org. So it has many of the all the kind of software products which you can download, and they don't require, you see here it says that minimum is 256 MB RAM. And but if you have nowadays all the laptops, which if you purchase a new laptop, it will come around I think 4 GB or 8 GB as the minimum RAM. And so you can say that they don't require much higher graphics, and this is free and office productivity tool. Most of the things you will get it from there. Then there is another thing which is called as LibreOffice. So again, this is free. It is open source tool. Whatever you can, these are the freely downloadable things. Means you can just download them by clicking here and see all this their various suites, various applications which are available to you, and you can work on everything whatever is there. And for your mobile, perhaps it may be if you are using Windows, so sometimes it comes by default as the factory installed version as WPS Office. I mean, in my mobile, it came as well, and here you can see that it is available for Windows, for Macintosh, for Linux based, for iOS, and for Android based. So this is WPS Office, and you can again freely download, well, available for all these machines, and that can be work on various kind of softwares. It will provide you all these things.
There is another variety, it is called as Kingsoft. ये Kingsoft Office है. तो वो मीन्स यू कैन इंस्टॉल ऑल दिस थिंग्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इनको आप यूज कर सकते हो. जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज फ्री ऑफिस सूट फॉर वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल एक्सेट्रा. दिस इज द ऐप. आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या जो आपका आईफोन है तो उसमें प्ले स्टोर उसके वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसको इंस्टॉल. और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे इसके हैं. ये ऐसा इसका लोगो आपको दिखाई देगा जो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स को वो कन्वर्ट करके और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं. बट एक चीज का ध्यान रखिए दैट द क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट को बनाना है, उसके ऊपर काम करना है, देन it is always good idea to use a computer machine. जैसे आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपको कीबोर्ड का बड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, माउस को यूज़ करना पड़ता है. हाँ, एक्सेस करने के लिए यदि आपने किसी डॉक्यूमेंट को देखना है तो उस वक्त मोबाइल डिवाइस यानी आपकी टैबलेट है या आपका मोबाइल फ़ोन है वो ठीक है. पढ़ना है, उसको देखना है, एक्सेस करना है, उसके लिए क्रिएट करने के लिए इट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया. And not only for this session, for any kind of activity as you do as a teacher, आपको क्रिएट करनी है तो कंप्यूटर मशीन को यूज कीजिए, एक्सेस करना है तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो. तो आप इस सेशन में इस वक्त आप में से जो टीचर्स हैं, जिनको टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल क्रिएट करना है, दिस थिंग्स every software will work better when you use इवन आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको वीडियो एडिटर भी आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे और आप उससे वीडियो वगैरह को भी एडिट कर सकते हो. लेकिन कंप्यूटर मशीन के ऊपर ये काम ज़्यादा अच्छा होता है. हाँ, एक्सेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एज ए स्टूडेंट, इसमें से अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को, किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना है तो यू कैन यूज एनी डिवाइस. दैट इज परफेक्टली ओके. तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड था कि हम ऑफिस सूट या प्रोडक्टिविटी टूल किस चीज को बोलते हैं. अब हम स्विच करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और उसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दो तीन चीज़ें हैं कि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करते हो. सबसे पहले तो या तो आप सिंपली जो आपका विंडोज़ वाला है उसके अंदर आप जाएंगे और यदि आप WIN या वर्ड लिखेंगे तो वो आपको उसकी फाइल अब उसको आपको उसका आइकन दिखाई देगा और आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसको ओपन करने के लिए आपको लिंक देगा. दूसरा तरीका है कि आप सिंपली अपना जिस फोल्डर में जहाँ पर भी आप अपना काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी इसमें से आप अभी देख रहे हो, क्योंकि इस मशीन के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे वेरियस ऑप्शंस दे रहा है. आई कैन यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या पब्लिशर डॉक्यूमेंट जो कि बुक पब्लिशिंग और उसके अंदर काफ़ी काम आता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, और जो यदि कोई दूसरा भी देखना है तो वी कैन सर्च इट फ्रॉम देयर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और ये मेरा एक डॉक्यूमेंट ओपन इस तरीके से ये सिंपली बना लिया. तो इसको ओपन करते हैं. अब इतना एक डिफरेंस है कि अभी इसके वर्जन्स होते हैं. सो दो चीज़ों को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा. एक है विंडोज़ का वर्जन और एक है ऑफिस का वर्जन. एक बार एक कैंडिडेट को एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो बार बार ये बोल रहे हैं कि सर मेरा ये इसमें कौन सा कि ऑफिस 2008 नहीं खुल रहा मेरा, वगैरह ऐसा करके. And it was quite a kind of a confusing situation because Microsoft has two parallel products. There is one operating system. तो Windows जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है
जैसे अभी ये जो लैपटॉप जो स्क्रीन मेरा डिस्प्ले है आपको, इसके अंदर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके पास या तो विंडोज 10 होगा या विंडोज 8 होगा या विंडोज 7 होगा, या इस तरीके से वो चलता जाता है, जो कि स्टार्टिंग हुआ था 1995 में, जिसको जब विंडोज बनाया गया था, जब मार्केट में उन्होंने उसको रिलीज किया था। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मशीन को चलाने के लिए आप यूज करते हैं, कमांड देते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका। तो वो तो मशीन के लिए हो गया। आप जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे वो आपका ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस के अंदर आपको एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, और एक बहुत लंबी उनके 25-30 किस्म के प्रोडक्ट हैं जो आप एक्सेस करते हो, उनके भी वर्जन होते हैं। तो अभी ये जो वर्जन है आपका, कौन सा वर्जन है, यदि आपने उसको देखना है तो आप हेल्प मेनू में जाकर, और यहाँ से आप जब इसको चेक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा, बता देगा कि कौन सा वर्जन और क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, और उस तरीके से आप उन चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो जब यदि कभी आपको आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये देखना है कि आपको ऑफिस टूल के ऊपर बात करनी है, तो ऑफिस टूल का वर्जन आपको बताना चाहिए। ये इस मशीन के ऊपर ऑफिस 2019 इंस्टॉल्ड है। आपकी मशीन पर हो सकता है इससे पहले 2016 वाला हो, या 2013 वाला हो, या विंडोज जो ऑफिस के जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वो वाले आपके इसमें इस्तेमाल हो गए। पुराने सॉफ्टवेयर का, पुराने वर्जन का कोई भी कमांड नए वर्जन में ऑटोमेटिकली चलेगा। नए वर्जन की कमांड हो सकता है, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, नए फीचर आते हैं, नई चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, तो वो चीज़ें पुराने बैकवर्ड इंटीग्रेशन may not work properly. It is always the forward, हम इसको कंप्यूटर की भाषा में बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब, आज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया 2020 के अंदर, और उससे पहले उससे पिछला वर्जन था उसका 2018 में, तो जो 2018 में जितनी भी कमांड थी वो 2020 वाले सॉफ्टवेयर में आराम से चलेंगी। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को जब बनाना बंद कर दिया गया और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाई गई, अब जो नए सॉफ्टवेयर में है तो वो पुराने वर्जन पे हो सकता है ना चले। तो इसीलिए आप देखो कि जब नए सॉफ्टवेयर ये तब आए, पहले तो ये केवल .doc के फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट को सेव करते थे। अब उसके बाद जब से ये विंडोज 2016 और ऑनवर्ड्स जो आए, तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को docx, docx उसका एक एक्सटेंशन बनाया जो कि ज़्यादा पावरफुल है, बेटर डिस्प्ले है, उसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हो जाती हैं, एंड वो बेटर वे देता है डिस्प्ले के लिए, व्यू के लिए। तो उनको इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो चीज़ है। तो ये इसके बारे में ब्रीफली है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ें हैं इसकी नेविगेशन के बारे में वो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला इसका है ये इंट्रोडक्शन ऑफ इसकी इनिशियल्स, कहाँ पर इसकी डिटेल्स हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंफॉर्मेशन को आप देखें। ये आपको एज ए डॉक्यूमेंट दिखाएगा, बट दिस अप्लाइज टू ऑल द। और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में एक अच्छी बात क्या है, दे हैव ए यूनिफॉर्म यूआई, यूनिफॉर्म यूज़र इंटरफेस, यानी हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो उसका मेनू रहेगा वो लगभग सेम रहेगा। तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये एमएस वर्ड में है। उसी तरीके से आपको कुछ वेरिएशन के साथ एमएस एक्सेल में मिलेगा, एमएस पावर पॉइंट में मिलेगा, एक्सेस में मिलेगा, पब्लिशर में मिलेगा, और जो उसके डिफरेंट और अदर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको वो दिखाई देगा वहाँ पर। तो ये आपके लिए ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। कभी कभी अब ये आप देखिए कि यहाँ पर अभी मतलब ये इसका, ये मुझे इस डॉक्यूमेंट की जिसका नाम मैंने टेस्ट रखा है, ये इस फोल्डर के अंदर इसको सेव किया है। ये उसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है मुझे। कंपैटिबिलिटी मोड,
ये आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी यदि आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस का पुराना वर्जन है, लेकिन आपको आपके किसी कुलीग ने, आपके ऑफिस ने नए वर्जन की फाइल भेज दी, या आपके ऑफिस में आपकी कंप्यूटर पे नया वर्जन है और आपको जो आपने फाइल तैयार की, आपने जो रिपोर्ट तैयार की, यदि वो आपको अपने कुलीग्स को भेजना है और आपको ये पता है कि उसकी मशीन में MS वर्ड का पुराना सॉफ्टवेयर है, तो ये कंपैटिबिलिटी मोड यहाँ पर आपको अलाउ करता है कि जो इसके MS ऑफिस के अलग अलग वर्जन्स हैं उनके साथ ये किस तरीके से काम करेगा। नहीं तो क्या होगा, यदि आपने एक वर्जन की फाइल दूसरे वर्जन ऐसे सिस्टम पर भेज दी जहां पर उसका वर्जन डिफरेंट है, तो उसकी फॉर्मेटिंग बिगड़ सकती है। वहां पर आपने कोई टेबल बनाई तो वो दूसरी मशीन पे वो टेबल उल्टी सीधी हो सकती है, वो हो सकता है प्रॉपरली फॉर्मेटिंग के चीज में ना दिखाई दे आपको। फिर ये है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने किसी एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेजना है ओवर नेटवर्क। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट आपकी मशीन से चलेगा और वो सर्वर्स पर पहुंचेगा और फिर वो यूजर तक पहुंचेगा, ये एक सिंपल सी चेन है। मेरी मशीन से अभी मैं अमिता जी को यदि कोई मैसेज भेजता हूँ, एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तो पहले वो मेरी मशीन से, मेरे इंटरनेट से चलेगा और जिस कंपनी का मैंने इंटरनेट यूज किया हुआ है वो उनके सर्वर्स पर जाएगा, उनके सर्वर से फिर वो अमिता जी के सर्वर को चेक करेगा और फिर वहां से वो उनकी मशीन के ऊपर वो डिलीवर होगा। यानी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चौकियां, चुंगी, वो जैसे देखा ना, आप सड़क पे जब जाते हो तो वो चुंगी का टोल बॉर्डर एक आता है, तो वो अलग अलग जगहों पे उसकी चेकिंग होती है। उसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट अलग अलग सर्वर्स पर से होते हुए आगे जाता है और किसी भी स्टेज के ऊपर उसको कोई भी जो भी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, दे कैन एक्सेस इट। इफ इट इज नॉट ए प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, इफ इट इज अनप्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, सिंपली वो उसको डाउनलोड करके डबल क्लिक कर सकता है और उसको पढ़ सकता है उसके अंदर क्या चीज है। यदि आपको ऐसे लगता है कि कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, उसमें पासवर्ड डालना है, और कभी कभी आपने देखा होगा आप लोगों को बैंक की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक्सेल शीट है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, और आप कभी ये वंडर कर रहे हो कि वो पासवर्ड कहाँ से डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, तो ये वो जगह है जहाँ से आप उसके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो, कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू दिस डॉक्यूमेंट। तो सिंपली ये आपको बताएगा, जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये इतनी सारी चीजें आपको दिखाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट को एक आप बनाओ और फिर आप उसमें ये सेटिंग डाल सकते हो कि ऑलवेज ओपन रीड ओनली मोड। व्हाट इज दिस रीड ओनली? जैसे आप देखें, कंप्यूटर में दो तरह की टर्म्स हम यूज करते हैं मेमोरी से रिलेटेड, ROM एंड RAM। रीड ओनली मेमोरी ROM एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM। जब आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हो और आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया और बंद कर दिया, उसके बाद जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब निकल जाएंगी उसके अंदर से। तो आपने कोई क्लिप बोर्ड करके मेमोरी के अंदर कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कंट्रोल कॉपी करके आपने कुछ छोड़ रखा था जो आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर टेम्परेरीली सेव होता है। लेकिन ROM, रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी की भाषा में मैं आपको बोल रहा हूँ, वो चीजें हैं जो वहां पर स्टोर रहती हैं। जैसे कंप्यूटर की कमांड्स हैं, कंप्यूटर जितनी भी चीजों पर बन रहा है वो सारा वहां से स्टोर्ड है। अदरवाइज तो कंप्यूटर को शट डाउन आपने किया तो सब कुछ गायब हो जाना चाहिए था, जो पुराने जमाने में होता था। जब आप कंप्यूटर्स के अंदर डायरेक्ट मेमोरी नहीं होती थी तो हमें फ्लॉपी डिस्क के अंदर से ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ता था और दूसरी फ्लॉपी डिस्क से ही आपको अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जिसमें डाटा सेव करना है वो आपको डालना पड़ता था। तो ये यहाँ पर रीड ओनली का मतलब है दैट the person will not be able to edit your document। वो उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, वो उसको पढ़ ही सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है जहाँ पर आपने कोई एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें आप ये चाहते हो, आपने उसको शेयर तो कर दिया लेकिन वो उसको चेंज ना करे। उसके नीचे आप देख रहे हो पासवर्ड, इसको क्लिक करने से पासवर्ड जनरेट होगा। ये आपसे पूछेगा, जैसे मैं इसको यदि आप मैं क्लिक करूं तो अब ये पासवर्ड देगा, बट इसमें एक बड़ा खतरनाक मामला है। यदि आपने किसी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दिया और आप खुद ही भूल गए कि वो क्या पासवर्ड था,
उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट कन्वर्ट इट। वो ये एक बड़ा, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, इसलिए इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट ट्राई टू रिमेंबर दैट पासवर्ड देन, keep it safe somewhere where it is not lost, because if you yourself forget and other party also forget, it is not retrievable. This document then cannot be opened, it cannot be retrieved from there. No tool will help you into that. So that is so powerful among that. So आप इसको कहेंगे, उसके बाद आप जिसको भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो आपसे, आप उसको बता दीजिए कि ये इसका पासवर्ड है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड हेडिंग है। ये डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत अच्छी चीज है। आजकल पीडीएफ के अंदर भी डिजिटल सिग्नेचर्स का आ गया, और आप जानते हैं डिजी लॉकर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जिसको सपोर्ट करती है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड और ये चीजें आप अपने डिजी लॉकर के अंदर आप डाल सकते हैं, या डिजिटल वॉल्ट है, वो चीजें हैं। उसी तरीके से वेरियस कंपनीज, इवन इट हैज ए लीगल सेंटिटी विच अलाउज यू टू ऐड योर डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर दो तरह का बनता है इसके अंदर, मीन्स कई सारी वैरायटी हैं। ओके, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में उसमें ऐड करना पड़ेगा इसको, बट ये दो तरह से बनता है, खासकर जैसे पीडीएफ वगैरह में भी आप करेंगे। एक तो सिंपल है कि आप अपना टाइप कीजिए, जैसे मैं आरसी शर्मा लिखूंगा तो वो मेरा डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा। दूसरा होता है आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप पेन से लिखते हैं उस तरीके से। इसको डिजिटल सिग्नेचर हम क्यों कहते हैं? ये डिजिटल सिग्नेचर वो वाला नहीं है जो आप कागज पे लिख के और फिर उसका फोटो खींच के और आप स्कैन कर लोगे और कहोगे कि ये, दैट इज नॉट दैट दिस काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ऑल्दो दैट इज ए डिजिटल प्रोडक्ट, बट इट इज ए सेव्ड स्कैन डॉक्यूमेंट, नॉट योर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर होने से, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर उसका एक मेटा डाटा होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आपको ये राइट में दिखा रहा है अभी, क्योंकि मैंने सिंपली नाम दिया है, फाइल के अंदर कोई कुछ टाइप नहीं किया है, तो इसके अंदर अभी 0 बाइट है। बाय डिफॉल्ट पहला पेज पर हम हैं, 0 वर्ड हैं, और इसको ओपन किए हुए 4 मिनट हो गए हैं, ये कह रहा है, हालांकि ज्यादा हो गए हैं। एंड आई कैन गिव दिस आर दी प्रॉपर्टीज की कौन ऑथर है, कब ये बनाया, लास्ट ओपन कब किया। तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन चेक दैट फ्रॉम वेयर दिस सिग्नेचर emerged, originated and to whom it belongs to। वो जो हम साइन करके फोटो खींच के और सर्टिफिकेट्स में और डॉक्यूमेंट्स में लगा देते हैं, वो तो बड़ा सिंपल है। अमिता जी मुझे एक सर्टिफिकेट भेजती हैं अपने सिग्नेचर का, मैं उनके उस सिग्नेचर को वहां से उठा के और एक नया एक अपने आप को एक बढ़िया सा एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम से ट्रांसफर करके एक पेज के ऊपर बना सकता हूँ और उसको पेस्ट कर सकता हूँ, और बाकायदा वो लुक लाइक लगेगा। दैट इज ईजी, बट नॉट दिस डिजिटल सिग्नेचर्स, ऐसे वाले के अंदर। फिर कभी कभी आपका डॉक्यूमेंट यदि करप्ट हो जाए किसी वजह से, उसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये आपका यहाँ पर चेक फॉर इश्यूज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि अब ये यहाँ पर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट उसमें काम आता है जब कोई सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन हो, पर्टिकुलरली हैकर्स वगैरह के लिए। द ग्राफिकल पिक्चर्स we should be very careful when we share them on social media using our mobile device or our computers, because उसके पीछे malicious code हो सकता है। और ये जो फोटोग्राफ वाले होते हैं उसके अंदर तो बहुत, आप किसी भी चीज को, और ये तो सिंपल आप भी कर सकते हो, क्यूआर कोड बनाइए, उसको इमेज के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और वो दूसरे जैसे ही उस फाइल को डबल क्लिक करेगा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पैच है, कोड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन इट कैन स्टील द इंफॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट का मतलब है कि उसकी जो हिडन प्रॉपर्टीज हैं, जो आपको वैसे डायरेक्टली नहीं नजर आती हैं, वो क्या क्या हैं, वो चीजें वहां से आपको नजर आएंगी। ये जो लेफ्ट पेन है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे वर्क करेंगे। न्यू मीन्स नया डॉक्यूमेंट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको टेम्पलेट दिखाएगा, और इसके टेम्पलेट में देयर आर लॉट ऑफ, ये इसकी एक पावर है कि
आप में से जो 2013 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं हो सकता है उसमें से कम होंगे, बट इट इज सेम इन देयर। और यहाँ पर आपको डिजाइनिंग के बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट मिलेंगे जो आप करना चाहते हो। जैसे ये आपको दिखा रहा है, आप या तो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ये आप देख रहे हैं ये रिज्यूम के लिए है, क्रोनोलॉजी के में को आपने कुछ करना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं, इतना सारा आपके पास, मतलब बहुत इसके अंदर वैरायटी है। सर्टिफिकेट जनरेट करना है, लेटर हेड आपने बनाना है, पार्टी का इनविटेशन आपने करना है, कोई फैक्स भेज रहे हैं आप तो फैक्स का एक कवर पेज होता है वो आपने आगे भेजना है। बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स, तो ये इतने देखिए इतनी सारी कैटेगरी है आपकी। ये इधर राइट में ये आपको नंबर दिखा रहा है, आप देखिए कि हजारों के अंदर ये आपको इसके मिलेंगे। बिजनेस के लगभग 500 हैं। प्रेजेंटेशन आपने बनानी है कोई, और उसके लिए आप चाह रहे हो कि कोई आपको एक अच्छा सा उसके अंदर मिल जाए, तो ये पावर पॉइंट के अंदर भी आपको 64 किस्म के टेम्पलेट वगैरह दिखाएगा। तो किस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं, आपको एक स्पेशल डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हो। न्यू और ओपन में डिफरेंस ये है कि न्यू का मतलब है बिल्कुल नया क्रिएट करना चाहते हो आप, और ओपन का मतलब है कि पहले से कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रही है आपके सिस्टम में और आपको उसको ओपन करना है। तो वो ओपन का मतलब है विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस मशीन, जिसके ऊपर ये वाला सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो। वो सेव, आपके किसी काम को करना है, आपने उसको सेव किया, वो सिंपल सेव होता है। लेकिन सेव एज बहुत एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे काफ़ी काम में आती है। जब आप सेव एज को क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है, और जब आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इतनी सारी आपको चीज़ें दिखाता है। इसमें से हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ ना हो, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मशीन पे कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे पीडीएफ करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप के मशीन पे डायरेक्टली पीडीएफ अवेलेबल हो, इट डिपेंड्स सॉफ्टवेयर। मैं जो पसंद करता हूँ पीडीएफ 995 एक यूटिलिटी है, आई लाइक दैट वेरी मच। मैं आपको उसका पेज दिखाता हूँ, पीडीएफ 995, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोग क्यूट पीडीएफ भी यूज करते हैं, क्यूट पीडीएफ, लेकिन क्यूट पीडीएफ को, और ये फ्री का है, आप इसको यूज कर सकते हैं, एक्रो सॉफ्टवेयर ने इसको बनाया था, फ्री है। बट इसमें मुझे ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मान लीजिए आपने कोई भी आप डॉक्यूमेंट इसके अंदर सेव करेंगे, ये लास्ट में एक एक्स्ट्रा पेज क्रिएट करता है। तो और खासकर यदि आपको प्रिंट करना है तो या तो आप कमांड ध्यान रखें कि आपका 5 पेज का डॉक्यूमेंट था, इसने क्रिएट किया तो 6 पेज हो गए, और जब आप प्रिंट देंगे तो आपको पहले 5 का प्रिंट लेना है, नहीं तो हर बार एक पेज एक्स्ट्रा आपका वेस्ट जाएगा। ओ आई डोंट लाइक दैट, आई प्रेफर दिस पीडीएफ 995। इसके 4-5 जब आप इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो ये 2-3 यूटिलिटी आपको देता है। अब क्योंकि फ्री का ये भी है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ये भी आपको करेगा। ये क्या करता है, केवल जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को इससे सेव करेंगे तो आपको एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, कुछ 5-10 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पे वो रहेगी, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स मेरा ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है कि जो मैं बिल्कुल मुझे नासा के लिए अंतरिक्ष में कोई एक स्पेस यान भेजना जहाँ पे सेकंड्स तक इम्पोर्टेंट है, तो आई कैन अफोर्ड दैट एडवर्टीजमेंट, बट दिस इज वेरी पावरफुल। तो ये जो आपका इसमें है, आपके डॉक्यूमेंट को आप बहुत अलग अलग तरीके से आप सेव कर सकते हो। और इसकी एक अच्छी फीचर ये होती है वेब डिजाइनर्स के लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी तरीके से वेब पेज के फॉर्म के अंदर भी आप सेव कर सकते हो। हालांकि ऐसे ये आपको एक एलिमेंट्री वेब पेज HTML की फॉर्म में उसको सेव तो कर देगा, बट उसकी सिमेट्री उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जल्दी जल्दी में मान लीजिए आपने एक वेब पेज बनाना है, कहीं पे उसको ऐड करना है, सबसे सिंपल फास्टेस्ट वे यही है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अपना मैटर कंपोज कीजिए और उसके बाद उसको सेव एज वेब पेज कर लीजिए।
इमीडिएटली वो HTML की फॉर्म में होगा, फिर आप उसको अपनी साइट पे अपलोड कर दीजिए, रन कर दीजिए। थोड़ी सिमेट्री उसकी जरूर उतनी अच्छी नहीं आएगी जो एक्चुअल में आप HTML टूल्स को यूज करते हुए आप बना सकते हैं, बट फिर भी ये एक अच्छा वो आपके सामने। और यहाँ पर आप देख रहे हो वो जो कंपैटिबिलिटी मोड था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सिंपल पहला वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है सेविंग इट विद इन दिस वर्जन, और अदरवाइज वर्ड मैक्रो अनेबल्ड डॉक्यूमेंट। ये मैक्रो जो है ये आपके लिए अच्छा रहेगा सीखना कि मैक्रो का वर्ड मतलब क्या होता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी स्प्रेडशीट्स सॉफ्टवेयर्स के साथ, जहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपने एक स्प्रेडशीट बनाया और आप उसके अंदर कुछ आप एक जगह पे चेंज करते हो, और उस चेंज से आप चाहते हो कि दूसरी जगह पे जो चेंज है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको मैनुअली ना करना पड़े। तो आप कंप्यूटर को कमांड दे देते हो कि यदि ए पॉइंट पर कोई चेंज हो रहा है तो बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर ऑटोमेटिकली वो करता चला जाए। तो इसको बेसिक ब्रॉडली सिंपल भाषा में हम मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है कमांड। तो वो कंप्यूटर को हम कोई कमांड दे रहे हैं उसको चेंज करने के लिए। तो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कमांड भी डाल सकते हो, और इसीलिए अब आप देख रहे होगे कि ये सॉफ्टवेयर्स क्यों डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए बैंक वाले हमेशा आपको क्यों बार बार सावधानी का मैसेज देते हैं। और बिलीव यू मी, ये जो मैसेज आते हैं ना ये वास्तव में रियल मैसेज हैं। मेरा खुद का एक जानकार है जिनको बैंक किसी ने फोन किया कि जी वो आपका क्रेडिट कार्ड लॉक हो गया है और क्या आप उसको हम खोल दें। हाँ जी हाँ जी, वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम हम आप उसको कर रहे हैं, और आप हमें इसका आप नंबर दे दीजिए। उसने नंबर बता दिया। फिर वो फिर दोबारा फोन आया तो मैडम आपको एक पिन आया होगा वो भी बता दीजिए। इमीडिएटली 16,000 रुपए उनके अकाउंट से निकल गए, और तब उनको पता चला कि ये क्या स्कैम हो रहा था। दीज आर द रियल थिंग्स विच हैपन अराउंड अस। हो सकता है आपके भी किसी के सर्कल में किसी के साथ ऐसे हुआ हो। ये जो कहते हैं कि अनवांटेड डॉक्यूमेंट को नहीं खोलना चाहिए, वो इसीलिए कि MS वर्ड और ये जो चीजें हैं, क्योंकि जिस जिस भी चीज के अंदर मैक्रो फंक्शन कर सकता है, इसका मतलब आप उसके अंदर कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कोड वो आप डाल सकते हो, और जैसे ही वो उसको खोलेगा, ओपन करेगा, तो हैकर ने जो कमांड डाल रखी है उसको ओपन होने के बाद वो क्या क्या करेगा वो सारा हो सकता है। तो वो तो मैं आपको डार्क साइड बता रहा हूँ, बट फायदा इसका क्या है? फायदा इसका ये है कि आपको जो चीज आप ऑटोमेटेड कर सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद उसमें क्या चीज डिस्प्ले हो, कैसे वो जाए, एक पॉइंट पर है। मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो हाइपर लिंक बेस्ड डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, आजकल रिसर्च आर्टिकल्स में ये बड़ा होता है, कॉमन है कि आपने एक बनाया और उसमें एक वर्ड को हाइपर लिंक कर दिया, और जैसे ही आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, या क्लिक कर देंगे तो आपको वो दूसरी जगह ले जाएगा। वो उसके लिए तो अच्छी चीज है, बट लोगों ने उसको मिस यूज करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ लिए हैं, वो अलग चीज है। ये पुराने वर्जन के लिए है जिनके पास वर्ड 97 1997 में जो बना था, या सन 2003 में जो बना था। तो मैंने नया डॉक्यूमेंट बनाया, बट आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर है तो मुझे इसको एज सेव एज ये वाला करना पड़ेगा। फिर मैं एक वर्ड टेम्पलेट एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने एक अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, और आप चाहते हो कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के अंदर वो सेम चीज रहे। तो ये इसके ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। हो सकता है अब ये जैसे आप लास्ट वाला देखें, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये उसको कन्वर्ट करेगा। हाँ, इसमें से XML आप में से जो भी टीचर हों और जो रिसर्च में इन्वॉल्व हों, क्योंकि मैं देखा है कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं इस सेशन के अंदर, लेकिन आप में से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो किसी जर्नल से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, ये XML डॉक्यूमेंट उसके लिए बड़ा काम का है। XML होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ये सिमिलरली टू HTML है। लेकिन इसका फायदा क्या इसका है कि बहुत सारे ऐसे पब्लिशिंग हाउस, जहां पर आपने अपना जो आर्टिकल बनाया और आपको उनको पब्लिशिंग हाउसेस को सबमिट करना है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा स्कोपस का, वेब ऑफ साइंस का, UGC की केयर लिस्ट, और इस तरीके से जो चीजें हैं, तो वो तो इंडेक्सिंग है। लेकिन जो पब्लिशिंग हाउस हैं उनको अपनी वेबसाइट पे जब उसको पब्लिश करना होता है तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर वो फाइल चाहिए।
वो अपने आप कोई बैठ के डाटा एंट्री नहीं करने वाला, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट की वो डाटा एंट्री करेंगे। वो आपसे क्या कहेंगे, आप मुझे ये XML डॉक्यूमेंट के तौर पर भेज दीजिए। जब आप इसको XML डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि who is the author of that document, when it was created, what is the property, it is metadata. That metadata is saved as. So what happens when that publisher receives your XML document, they will simply double click it and put it into their servers, and that the server will extract that information and save it into the website. So this is all automatic. Otherwise, every year millions of papers they are published. Do you think that the publishers they do all that thing as manual labor? No, never. Nobody does that. They use this XML. So I thought that you must be knowing about. Why can't I see the information tab in my MS Word? Now you need to see, click on that info, and then it will come from there. This one, it depends how. Sometimes it may be on the inner tab. Then print, share. There is a difference between printing and exporting. Print means where it will be printed, and on paper or on screen, or save it as something. And then there are various options. You can configure your printer by having it configured that what it will print. And this is very important in that case where you have a colored printer, because by default then it will it will print the color, and you may be knowing that the color toner is very expensive as compared to the black ink toner. So you need to select that whether what you want to select, and those things are there. Exporting means exporting it as a what, as a different kind of software, as a package, as a file, where here you see XPS document or PDF, and I can change my file type because I can convert this into a different kind of a software or something from there. So this is how, this is the important thing to know about the properties of a document, where it controls the nature of the document. From here you need to know that how your document will behave as such. That was the in a way, like those of you who are from chemistry, you may be knowing that metals and non-metals, when we study them their physical properties and chemical properties. So physical property is something like it is hard, it is smelly, and it has a color. Like if it is iron or if it is magnesium, it has some color when you see it in its raw sense there. And chemical property is something like how the thing will react with other kind of element from there. So अभी तक मैंने आपको जो बताया, that was a type of a physical properties of the document. Now let us come inside. Here you see on the top is the navigation menu, where it gives you the quick access toolbar, it is known as, where you can see you can make it smaller or larger depending on what do you want. But immediately open a new document within a document. I'm working on a document and then suddenly I need to paste something, then I can click on a new document, a blank document, and then work on there. I can save it, I can open it, I can send an email, print, preview, I can check the spelling and grammars. Oh, this is very important. Maybe in the next session I can tell you certain utilities which are free utilities, and they can check the spellings and grammars automatically. Like those of you perhaps maybe knowing, Grammarly is a tool which is very good. Grammarly, you can download and install it, and this is a very good software. You will see this G with the green color round button. You can install it on your browser, it will stay on your browser, and it is available for both your Firefox and Android. And whenever you start typing anything,
It will automatically tell you whether there is any spelling mistake or there is some grammatical syntax error or something. There is an extension of it for MS Word also, because those things which you do in your browser, it can check it, but here it works with the document. तो आपको ग्रामरली का एक एक्सटेंशन भी मिल जाएगा जो आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए वर्क करेगा। तो फिर आप यहाँ पर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर भी मिस्टेक्स वगैरह के बारे में बता सकता है। सो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है ये है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो आपको फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, वो बटन आपको दिखाएगा। आप कितने छोटा वो चाहते हो, लंबा वो चाहते हो, वो आप सारा का सारा यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। उसी लाइन में आपको फाइल का नाम आपने जो दिया है वो आपको दिखाएगा और उसका वर्जन दिखाएगा। राइट में जो क्रिएटर है, जिस मशीन के ऊपर इसने कॉन्फ़िगर किया है, जब आप विंडोज को इसको इंस्टॉल करते हो तो आपसे ये पूछता है ऑथर नेम। बाय डिफॉल्ट आपने जो सेव किया ये वो आपको दिखा रहा है। जैसे मैं आपको दोबारा से यदि इसके अंदर जाऊं, इन्फो के अंदर और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में, आप ये देखें यहाँ पर रिलेटेड पीपल में ऑथर में मेरा नाम लिखा हुआ है इधर। I can add another person or I can change it later on, make it someone else by clicking it here and we can find the other people. So ये यहाँ से आता है जो स्टे करेगा। इसका क्या फायदा है, जब आप डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो या जैसे ट्रैक चेंजेस में करके आपने, if you put certain reviews, certain comments, it will show you the name, that name, and this is to maximize, minimize, close this document and like that. The second is the ribbon. It is called as ribbon, RIBBON, ribbon. Here lies the actual power of software, the tools with the help of which you will be working. So I will briefly explain them and then we can, So this is the file menu and here it is home. Home contains the most simple, ये आप इसी तरीके से इसको मान के चलिए कि जैसे यदि आप कभी ध्यान दें, आपके कंप्यूटर के ऊपर जो कीबोर्ड है उसके अंदर की जो बनाई गई हैं उनका एक विशेष महत्व होता है। ये रैंडमली नहीं है। ये जो नॉर्मली अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कीबोर्ड को, इसको क्वर्टी टाइप ऑफ कीबोर्ड बोला जाता है। QWERTY, QWERTY. So ASDF and something like that. Because रिसर्च से ये पाया गया कि हम कितने वर्ड कॉमन है जो हम बार बार टाइप करते हैं और कितने वो हैं जो कम टाइप होते हैं, तो उसके हिसाब से कीबोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट की गई है। तो यदि वही आप देखें तो उसी तरीके से होम के अंदर वो सारी चीजें हैं जो नॉर्मल कोर्स में हमें अपने डॉक्यूमेंट को यूज करने में काम आएगा। सो इफ आई टाइप समथिंग लाइक hello friends and after that I need to make it bold. So here it is Control B. I want to make it italics, underline. I want to change color. I want to have something special style, something I want to give it some color, and then normal things, find, replace, anything. These are the most common things which we need do take. For example, if I type something, make something, say I changed the format and that's why it is displaying. Now I want to make it a bulleted list. So simply I click here and makes it a bulleted list. I can make it a number list and like that. I can make the indent inside, outside. I can short them in terms of A and Z and they will be arranged. So till now hello friends was on the first, but now I have arranged it in dictionary style alphabetically. So it has become C, D, H and S in that way, because we work mostly on these things. And here is the table menu like that. The borders, here I can give which kind of border it should show, all borders, no borders, inside borders, outside borders, and I can draw a table. I can view the grid lines, this and that. Here this works for basic purpose of our software. But the next one is, now I have created this document. Now I want to add certain good functionalities into my software. The rest of the things, they are there for extra functionalities. Insert. I want to insert something. What do I want to insert in my document now?
I can insert all these things. Anything which you can think of can go into the MS Word document. Say like I can want to make a cover page, I want to add a blank page, I can make a brick page. So I think that, okay, let us here, and I bring my cursor at the end of the second and I click it. So it has divided my page into two parts now. So you can see, if I can here, so you see there are two pages now. So that way a page break. Then I can insert a table. It will ask me, okay, आप लोगों को सबसे पेज के व्यू के अंदर सबसे लोअर राइट कॉर्नर में आपको इसका मैग्निफिकेशन दिखेगा, जहां से आप इसको कर सकते हैं 100% कितना किस तरीके से। और ये आप ये वेब लेआउट के तौर पे भी कि वेब पर जब ये जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, या रीड मोड या प्रिंट लेआउट आप उसको भी वो फिक्स कर सकते हो कि किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट दिखे। जैसे ये मेरा रीड मोड है, जब मैं कोई डॉक्यूमेंट को खोलेगा तो उनको वो कैसे दिखेगा, और उसके अंदर इस तरीके से आप इसका रीड मोड आप कर सकते हो। ये मेरा प्लेन नॉर्मल मोड है। यदि मैं वेब लेआउट को क्लिक करूं तो ये एज ए वेब पेज, और इसके अंदर यदि कोई हाइपर लिंक है तो इट विल लुक लाइक एज ए हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट। फिर आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपने कोई पिक्चर्स करना है, कोई शेप डालनी है, ये इतनी सारी शेप्स हैं। आप इसमें से जैसे आपने ये सिलेक्ट किया और ये आपने एक शेप उसके अंदर डाल दिया। इस शेप को अब आपने डिफरेंट कलर देना है तो ये आप कलर चेंज कर लेंगे। अभी मैंने ये अंदर का कलर कर दिया, बट आई नीड टू चेंज माई आउटलाइन। आई कैन चेंज द आउटलाइन। आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप and make them in any way manner possible. I can just rotate it and make it something like, and I can reposition it in any corner. It comes all with this. In addition to that, there are the shade effects like shadow. So the image on the borders, it will have some shadow into it. These are the powers to make it as a to look as a very pleasing graphical way there. This is important here, how to position our text. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम यदि किसी वेबसाइट पर जाएं, हमने कुछ टेक्स्ट किया है, मान लीजिए मैं, ओके लेट मी चेंज दिस फॉर्मेट, no bold, no italics, no there, and say Cambria. So there, and let us change the font. Okay, here it comes, and the color, let's make it, okay, because this is going there, and I have some text, I'm just adding. And what I will do after that, I will go to pictures folder and say copy a photograph, come back to my document, and I want to put the photograph. So here the photograph, and let us just resize the photograph. So अभी आप ये देखें कि ये जो फोटोग्राफ है ये ऐसे आ रहा है, बट आई वांट इट टू बी रीपोजिशन्ड इन सम इंटरेस्टिंग वे। तो वो आप सारा फोटोग्राफ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसका फॉर्मेट, प्रॉपर्टीज, और फिर पोजीशन। इन पोजीशन में किस तरीके से ये दिखे, जैसे ये मैंने यदि ये किया तो अब आप देखें ऑटोमेटिकली फोटो और टेक्स्ट उसका इस तरीके से आ गया। टेक्स्ट के सेंटर में, कॉर्नर में फोटो चला जाए, बीच में आ जाए, सेंटर में टेक्स्ट के। तो ये इस तरीके से ये एडजस्ट हो गया मेरा टेक्स्ट। तो आगे पीछे वो द टेक्स्ट कैन बी resorted. So you can insert the Wikipedia entries into it. For that you need to be connected. You can click on Wikipedia and then it will open. And if you are connected to internet, then here it says that, do you trust this website? Yes, I trust this website. After that it will open, and here is my Wikipedia. And if I want to search something on Shri Lal Bahadur Shastri,
So it will search. Oh, okay, it cannot find any relevant article. Maybe there is some, yeah, spelling mistake is there. So here, and then if I have found something, so we can simply see it, and from here we can, you know, take it, put it inside our text. So within the document, it allows us to include all these things. We can simply take the material from here and then add it to our document. So that helps us from the Wikipedia entry. And this is all, you know, with all these multimedia which are available on that page, like that. So next is the design. Design gives us the various styles, how I want my title. These are the various formats. And then I can select some color for my document, that the text, etc., how much it will appear, like that. So these are, okay, this watermark is important. Sometimes you may like to share some report and you want that the people, they should know that you are the owner of that. You want to have some watermark included. So in this way, you can have certain watermarks. Here you can write anything. You just need to tell your word, and that will appear like this. Little slanting, straight, in this way. Then the next is the layout. Layout is important for you, how your page will look like. So margins, orientation, whether it is landscape or horizontal, the size of the page, A4, A3, A5, B4, like that. One column, two column, many columns, multi-column, you arrange your document from here. This is very important for research people. References, you need to say, click on, when you go there, it will add a endnote or a footnote. Footnote means on the bottom of this page, but endnote will insert it at the end of the document. So sometimes it is required in research purpose or making some report there. Similarly, you need to insert certain citation. You manage your, say you click on manage sources, and then it will open. It will ask you to browse, and from here in the bibliography, if you have saved some XML file. So यहाँ पर आप देखो, ये वो XML फाइल है जो भी मैं आपको बता रहा था. ये XML फाइल ढूंढने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इसको वो फाइल मिलती है, ये उस फाइल में से, मेरा ख्याल है, यदि मैं देखता हूँ मैंने कोई फाइल बना रखी हो तो, ओके, अश्विनी ओपन, ओके, here it is XML report. So this is an XML document. I select on it, I copy it, और ये देखिए जैसे ही मैंने किया, इसके अंदर से ये 3 रिसर्चेज आ गई, और ये यहाँ पर, तो मैं इनको एक को सिलेक्ट करूँ, 2 सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, मैंने इधर किया, इसको कॉपी कर दिया, तो ये इधर आ गया. अब जैसे ही मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये नीचे रेफरेंस है और ये इसका साइटेशन है यहाँ पर, और ये उसकी बिब्लियोग्राफिक एंट्री है, ऐड. एंड देन आफ्टर दैट आई नीड टू बिब्लियोग्राफी, किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर वो बिब्लियोग्राफी, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये मेरा बिब्लियोग्राफी सॉफ्टवेयर ने उसके अंदर ऐड कर दिया. मैंने कुछ नहीं टाइप किया अभी आपके सामने. ये रिसर्च में आपको, इट विल गिव यू सो मच ऑफ द हेल्प. So you just export, go to internet, save the research as XML, bring it into your Microsoft Word, and then type it automatically. ये bibliography का जो heading है, ये इन्होंने टाइप किया, मैंने टाइप नहीं किया, सॉफ्टवेयर ने टाइप किया. And I can update it. Immediately I click on it and it will lead to that particular thing. Similarly, mailing list है. जब आपको ढेर सारे लेटर्स भेजने हो हजारों की तादाद में, आप एक एक इंडिविजुअल लेटर नहीं बनाएंगे. यहाँ से आप एनवलप क्रिएट करेंगे या लेबल क्रिएट करेंगे, फिर मेल मर्ज करेंगे. मेरे ख्याल में इसका नेक्स्ट कभी एक अलग से आपको सेशन आ रहा है. रिव्यू का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जब आपको किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट को पढ़कर उसके ऊपर आपको अपने कमेंट्स देने हों. जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर इसको कमेंट दूं कि लाल बहादुर शास्त्री, और ये मुझे करना है, यहाँ पर मैंने ये कमेंट बन गया, और he was a great leader, तो ये सेव हो गया. बस इतना सिंपली आपको इतना करना है, इट विल स्टे, देयर इज नो नीड टू सेव और समथिंग.
दूसरा व्यक्ति जब इसको पढ़ेगा तो दे कैन रिप्लाई टू इट एंड देन दे कैन से whatever they say I agree and like that. So communication, आपके किसी डॉक्यूमेंट को आपने उनको वो कराना है। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को डिलीट करें, कुछ करें, तो वो सेव होता रहे वहाँ पे। ये आपने इसको ये किया, डिलीट कर दिया, तो ये इधर देखिए एक रेड मार्क आ गया। और यदि आप इसको वो दिखाना भी चाहें कि किस तरीके से शो मार्कअप करें, क्या क्या उसके अंदर दिख सकता है, कमेंट, फॉर्मेटिंग, बैलून, प्रीवियस रीजन, क्या, और बाद में जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज चेंजेस एंड यू कैन कंपेयर द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हेयर बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स। आपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया, फिर आपने कुछ डिलीट किया, कुछ ऐड किया, and after 1 month you wanted to see that what was your old version, how it was working. You can compare the various versions of your document by comparing it here. It will show you various revisions over a period of time by going into there. So you need to know that when you deleted something, when you this is another feature of translating your document. By clicking on a translate the whole document into a particular language or translate a particular section. So you click on it and then it will install the Microsoft Translator services. It may depend on the nature of the version of your software. It may not be in the previous 2003 or 2007 software installation. So there, these things, these were the simple. View is to see how you can view, say like one page, multiple pages, you can define it in the page, and these sometimes you need them very regularly. Ruler and grid lines. Grid lines you show, it will show you grid lines. This grid lines is important for those people who work on a document from a graphical point of view. They need to know that where the thing is going. So you have the grid lines. और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है. These are the tabs. This is your ruler. So you can hide it to increase the space. You can bring it, and navigation pane. This is the navigation pane. If you have various table of content, various headers, you click on it and it will directly jump to that. So that is the navigation you can have. And you can have the side by side or outline, read out mode, web layout mode, like that. And here is that macro which I was telling you. You can integrate certain macros, the commands into it, which can work from there on that. सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत माइन्यूटली चीज़ों को इतने कम समय में बताने का प्रयास किया है।